Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this 12th lecture of digital image processing. This lecture is about gray level transformation functions. So we will start by learning that what is gray level transformation, and then we will see some gray level transformations like thresholding, negative image, power law transformation, and logarithmic transformation. Okay, and at the end of this lecture I will also give you a mini project to develop, and you have to submit this project within the given deadline. Okay, so a gray level transformation function in fact is a function that is applied on each pixel of the input image, and hence we get the processed enhanced image. And for example, if we represent the input image with F, and we say that the output image is G, then the gray level transformation function is represented by T, which has the formula which is given below. This function is applied on each pixel xy, where x is representing a particular row and y is representing a particular column of the image. So the each input pixel means f of xy is going to be processed with the help of gray level transformation function T, and then after this transformation the output image G is formed. Okay, so in other words, if we say that the input image pixel is represented by R and output image pixel is represented by S, then we can say that we can represent this formula as S is equal to T of R, where T means the transformation function which is applied on input image pixel, that is R. Okay, so S is equal to T of R. This is the generalized formula of gray level transformation function. So we will do some gray level transformations. First of all, thresholding. Okay, thresholding transformation is in fact a gray level transformation which is particularly useful for segmentation purpose. Okay, so when we want to isolate some objects of our particular interest, we want to isolate those objects from the background in the image, then for such kind of segmentation we apply thresholding transformation. Okay, so the generalized formula of thresholding transformation is given below. If the output image is G, and you can say that each pixel of the output image G is processed by using this formula, means the output image pixel can have the value of 1 or 0. In fact, if the input image pixel means R is greater than threshold, then the output image pixel will be represented by corresponding output image pixel S will be represented with 1, it has the value of 1, or otherwise it has the value of 0. So it means the output segmented image will be a binary image. Okay, so for example, see here a gray level transformation is performed here on a gray level image, and after applying some particular thresholding with the particular thresholding value. Okay, so we get this image. You can see here in this image all objects are within the white pixels, and the remaining background is in black pixel. Okay, so this is the MATLAB code
for thresholding purpose. First of all, you should make it your practice that whenever you want to write the some script, then first of all you should clear the command window and clear the workspace. So that's why you should apply clear and CLC command first, and then after that we have read image, and if this image is a grayscale image, then there is no need to convert it further in grayscale because it's already in grayscale image. So I have taken an example of a grayscale image, which is coins.png, which is already by default available in MATLAB, so I have used that image. So but if you use some colored image, then you have to convert it into a grayscale first, and then after that you should apply some thresholding. Okay, so in my case I have already chosen a grayscale image, which is coins.png. I have read that image and assigned it, load it in a variable I_img. So I is going to represent the input, so it's just representing the input gray level image, that is I_img. Okay, so I have set a threshold of 100. You know that the grayscale levels are from 0 to 255, so you can set any threshold here. So for example, I have set the threshold level of 100. Then after, first of all, the first command we will use here, we will check the resolution of input image. Okay, so the number of rows in input image is returned in variable m, and number of columns are returned in variable n. Okay, so we will make initialize with zeros a new image, which is going to be represent the output image, in fact. Okay, so the output image O_img will be represented here. Okay, and we are going to initialize this image with all zeros, and it has the resolution of m into n. Okay, so we have to apply this you can say the thresholding transformation on each pixel of the image, because there are m rows and n columns, so that's why we are using a nested loop here. The outer loop runs m times and the inner loop runs n times, so it is just going to ensure that we are going to address each pixel of the input image. Okay, so we will check the each pixel of input image, that if the threshold of that if the value of that pixel is greater than our set threshold, then we are going to set the output image pixel as 1. Otherwise we are doing nothing. Doing nothing means in the other case the output image pixel will remain as 0. Okay, so that's we learned in the definition of thresholding, that if the input image pixel value is greater than threshold, then output image pixel will set as 1, otherwise it will be 0. Okay, so if the input image pixel is value is greater than threshold, then output image pixel is 1, otherwise it is already 0, so we have done nothing in the else case. Okay, so at the end when we have input image and output image, we want to show the both images through subplot command on the same figure. Okay, when we run this code, we will see such a figure. This is the input image and this is the output image. Okay, so in this way we will do thresholding. The second gray level transformation is negative image. Okay, so negative images are useful for enhancing white or gray level details embedded in dark regions of an image. Okay, the output image pixel S value is obtained through input image pixel R value by the following formula. Okay, so for example, in a grayscale image, the maximum intensity level is 255. So in that case,
the output image pixel is obtained by this operation, means 255 minus input image pixel. Okay, but there is some another case in which the input image pixels can be from 0 to 1. It means such images are actually have the value of double, not integers. Such grayscale images have the value of double. So such double images has the minimum value of 0.0 and has the maximum value of 1.1. So in that case, in this formula, 1.0 will come here, and any value of input image that should be between 0 and 1 will be here. Okay, so that's why this is the generalized formula. The output image pixel is equal to the maximum intensity level minus input image pixel. Okay, so for example, this is the input image and this is the output. Here is the code of doing such kind of gray level transformation. First of all, we have read an image and assigned that image to I_img. This image is already in grayscale, so I have not applied RGB to gray here. Okay. इसके अलावा आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट इमेज है मैंने उसे यूनिट 8 में कन्वर्ट किया, बिकॉज जब आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू सेट होती है या उसे इनिशियलाइज किया जाता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डबल वैल्यू में होती है. ओके, सो जब मैंने एक आउटपुट इमेज जो है यानी आउटपुट इमेज का जो मैट्रिक्स है, जब उसको मैंने ज़ीरोज़ m, n से इनिशियलाइज़ किया तो वो तमाम वैल्यूज़ डबल थी. तो मैंने उसको उसकी टाइप कास्टिंग कर दी अनसाइंड इंटीजर ऑफ 1 बाइट मींस 8 बिट्स. ओके, सो uint 8 में मैंने इसे कन्वर्ट किया और जो है इस तरह से जो डबल इमेज था, जो डबल वैल्यूज़ थी तमाम ज़ीरोज़ की, वो सारी इंटीजर में चली गई. तो इस तरह से मैं जो है वो कंपैटिबिलिटी पैदा हो गई इनपुट इमेज में और आउटपुट इमेज में, बिकॉज इनपुट इमेज जो था उसके ग्रे स्केल की वैल्यूज़ जो थी वो 0 से 255 थी जो कि इंटीजर्स में थी. ओके, सो आउटपुट इमेज की तमाम वैल्यूज़ 0 से इनिशियलाइज़ की, लेकिन वो डबल में थी, तो हमने उसे uint 8 करके टाइप कास्टिंग करके तमाम ज़ीरोज़ को जो कि 0.0 थे उनको हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो अब इनपुट इमेज की वैल्यूज़ भी ग्रे स्केल की वैल्यूज़ 0 से 255 जो हैं वो इंटीजर्स में हैं, और आउटपुट इमेज की वैल्यूज़ भी जो है वो तमाम ज़ीरोज़ हैं और वो इंटीजर्स में हैं. ओके, अब हमने आउटपुट इमेज की जो हर पिक्सल है उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल माइनस इनपुट इमेज पिक्सल के बराबर जो है वो सेट कर दिया, जैसा कि हमने फार्मूले में देखा था कि आउटपुट इमेज की जो पिक्सल है दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल माइनस इनपुट इमेज पिक्सल. ओके, सो हमने ये चीज़ की और तमाम पिक्सल्स पे अप्लाई किया. So that's why we have used such kind of nested loop in which the outer loop is going to be run for all rows of the image, and within each row for all columns of the image the inner loop will run. Okay, so m cross n के image के लिए m outer loop m times चलेगा और inner loop जो है वो n times चलेगा, और यूं हर पिक्सल की जो है वो प्रोसेसिंग होगी to convert the input image into the negative of that image. Okay, so हमारे पास एक input image है और दोनों output image है, हम दोनों को एक ही फिगर के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस सब प्लॉटिंग कमांड की मदद से. ओके, सो ये हमारे पास एक फ़िगर ओपन हो गई. इस फिगर के दो हिस्से हैं. पहले हिस्से में हमने अपने इनपुट इमेज को शो किया, दूसरे हिस्से में हमने जो है वो उसके नेगेटिव को शो किया. अच्छा, ये काम एक और तरीके से भी हो सकता है, मींस इस नेगेटिव इमेज को एक और कोड के ज़रिए से भी हम कर सकते हैं, और वो कोड ये है. ओके, कि जैसा कि हमने बात की थी कि आउटपुट इमेज जो O_IMG को आप 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं तो तमाम ज़ीरोज़ जो है इनफैक्ट 0.0 होते हैं, यानी वो डबल होते हैं. ओके,
तो एक काम तो ये था कि हमने उन डबल्स को यू इंट 8 करके जो है वो हमने टाइप कास्टिंग कर दी, उसे इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने कंपैटिबल कर दिया अपने ग्रे लेवल के अपने इनपुट इमेज को, जिसमें इंटीजर में ग्रे लेवल वैल्यूज़ थी, उसको हमने अपने आउटपुट के साथ कंपैटिबल कर दिया। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि हमारा जो इनपुट इमेज है वो चूँकि उसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो हम उसको डबल में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, डबल में कन्वर्ट करने से ये होगा कि हमारा जो इनपुट इमेज के ग्रे लेवल्स थे वो 0 से 255 थे। तो डबल में कन्वर्ट करना बेसिकली ये होता है कि हर वैल्यू जो है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। मींस कि अगर आप हर वैल्यू को 255 से डिवाइड कर दें तो या तो उसका आंसर जो है वो 0 होगा या 0 पॉइंट समथिंग होगा, या फिर जो है मैक्सिमम 1 होगा। ओके, सो इम टू डबल के करने से मैंने एक इमेज को, एक ग्रे लेवल इमेज को रीड किया जिसमें ग्रे लेवल 0 से 255 थे, और फिर मैंने उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर दिया इम टू डबल। इसके करने से तमाम वैल्यूज़ जो है उसकी वो 0 से 1 के दरमियान आ गई। ओके, 0.0 से 1.0 के दरमियान आ गई। ओके, तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे केस में हमारे दोनों इमेजेस जो हैं आप यूँ समझ लें कि डबल में हैं, और हमारा मैक्सिमम लेवल नंबर 1 है। तो इस केस में हमारा जो यहाँ फार्मूला होगा, जो हमने यहाँ अप्लाई किया होगा, वहाँ पे 255 की बजाय 1 आएगा। ओके, सो आउटपुट इमेज ईच पिक्सल विल बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस इनपुट इमेज पिक्सल। ओके, बिकॉज द मैक्सिमम लेवल नंबर इज़ 1 नाउ। तो इस तरीके से करने से भी आपको सेम आउटपुट मिलेगी। सो इट मीन्स के देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ टू गेट नेगेटिव इमेज। फर्स्ट इज़ आपने अपना ग्रे लेवल इमेज जो है, जिसमें ग्रे लेवल्स इंटीजर की फॉर्म में है, उसको वैसे ही रखा, और अपना जो आउटपुट इमेज है उसको जैसे ही इनिशलाइज़ किया उसकी जो है ना टाइप आपने इंटीजर में दे दी। और ऐसा करने से आपको अपना ग्रे लेवल जो है वो चूँकि मैक्सिमम 255 था, तो यहाँ फार्मूले में भी आपने 255 यूज़ किया। सेकंड क्या था कि आपका जो इनपुट इमेज जो है वो उसको आपने डबल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 1 जो है वो यूज़ किया। ओके, तो इन दोनों तरीक़ों से आप नेगेटिव इमेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ग्रे लेवल जो है वो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है। और पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि आप कुछ ऐसा फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो आपकी इनपुट इमेज की जो वैल्यू है आप उसकी कोई पावर लेंगे, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा आप उसे जो है वो एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आम तौर पे ये कांस्टेंट जो है वो 1 होता है। ओके, तो इस तरह से हम आउटपुट इमेज के पिक्सल जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है कि बाय पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन वी वांट टू मैप नैरो रेंज ऑफ डार्क इनपुट वैल्यूज़ इनटू अ वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यूज़ और वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें कि पावर से मुराद होगा कि अगर 1 से बड़ी पावर है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 है, तो ये इनपुट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये इनपुट ग्रे लेवल्स हैं, ये डार्कनेस से वाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, और ये आउटपुट ग्रे लेवल्स हैं जो डार्कनेस से वाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अगर आपकी पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपने पावर 1.5 ली, here the formula is s is equal to c, which is a constant which is usually 1, so you can just ignore it. Okay, so so it means the main difference will be with the help of this gamma, which is power. Okay, so input image की जो पिक्सल की वैल्यू है means r, उसका आपने gamma लिया, पावर ली। okay, अगर ये gamma जो है यानी पावर जो है वो 1.5 है, तो कुछ ऐसी कर्व बनेगी इन दोनों ग्रे लेवल्स के दरमियान। अगर आप गौर करें तो शुरू के जो इंतहाई डार्क ग्रे लेवल्स हैं इनपुट के, ओके, जैसे जैसे उनके अगेंस्ट हमें कोई इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा, यानी जैसे जैसे इनपुट चल रही है वैसे वैसे आउटपुट चल रही है। बट आगे चलते चलते जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से जा रही है। ओके, तो असूली तौर पे इमेज आपका ये है जैसे r इज़ इक्वल टू 1 के अगेंस्ट है, ठीक है ना, या जिसमें इनपुट और आउटपुट बराबर है।
बिकॉज दिस इज़ आइडेंटिकल इमेज, जैसी इनपुट है सेम वैसी ही आउटपुट होगी r इज़ इक्वल टू 1 के केस में। ओके लेकिन आप देखते हैं कि जब ये कर्व यूँ होगी तो इट मीन्स कि इसमें डार्कनेस इंक्रीज़ होगी। अच्छा अगर ये कर्व जो है वो पावर जो है बढ़ा दें, मज़ीद बढ़ा दें, 1.5 से 2.5 कर दें तो ये कर्व मज़ीद ऐसे हो जाएगी। अच्छा और बढ़ा दें तो ये कर्व और ऐसे हो जाएगी। इट मीन्स कि जितनी पावर बढ़ती जाएगी इमेज में डार्कनेस ज़्यादा आती जाएगी। ओके अच्छा इसका वाइस वर्सा मीन्स इसका ऑपोजिट काम भी हो सकता है। अगर आप पावर 1 से बढ़ाने की बजाय 1 से कम करते जाएं, अब देखें आपने 0.67 अगर पावर रखी तो ये कुछ ऐसे होगा, 0.4 के अगेंस्ट ऐसे होगा, 0.2 के अगेंस्ट ऐसे होगा। ऐसे होने से मुराद ये है कि जो शुरू के लेवल्स हैं इनपुट के, जहाँ पे ये कुछ इंतहाई डार्क लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको इंतहाई वाइटनेस जो है ना नज़र आएगी आउटपुट के अगेंस्ट। इट मीन्स कि आपके इमेज में ब्राइटनेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ओके सो यही इसने कहा है कि आपकी डार्क इनपुट वैल्यूज़ को हम वाइड करना चाहते हैं, यानी उनको मज़ीद हम जो है वो वाइड करना चाहते हैं, उनको जो है ब्राइट करना चाहते हैं। ये भी कर सकते हैं और इसके ऑपोजिट काम भी कर सकते हैं, इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से। ओके तो इसको दो तरह से भी कह सकते हैं पावर लॉ के अंदर जो है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पावर 1 से बड़ी है तो उसको आम तौर पे पावर लॉ कहते हैं, और अगर जो है वो पावर 1 से छोटी है तो उसको हम रूट ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, जो कि इनफैक्ट होती पावर लॉ ही है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0.5। ओके तो अगर जो है पावर 0.5 है तो इट मीन्स कि ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना। लेकिन अगेन बहरहाल वो पावर लॉ की अम्ब्रेला के अंडर रहती है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये जितनी 1 से ज़्यादा हैं ये इसको हम पावर कह देंगे, और जितनी जो है ना 1 से ऊपर जो है ना नीचे हैं यानी 0.67, 0.4, 0.2 इनको हम रूट ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है तो इनको दो नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन ये कि आप इसे एक ही नाम से याद रखें, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूँ कर लेते हैं कि पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। ओके तो पावर जो है कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी, दैट कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1। ओके तो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं और साथ देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। कुछ हम एग्जांपल्स लेके अपने कोड को देंगे और फिर देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। सो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमने एक ये कोड कुछ लिखा। कोड क्या है जी, सबसे पहले आपने वर्क स्पेस कमांड विंडो को क्लियर किया, ब्राउज़ किया इमेज को और जो है एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। अच्छा ये इमेज चूँकि कलर्ड इमेज था तो इस दफ़ा हमें इसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ग्रे स्केल इमेज के ऊपर ही होती है, तो पहले हमें उस कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके अच्छा फिर एक और चीज़ है, हमने जो बात की थी पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में, और यही बात आगे भी आएगी चूँकि अगली ट्रांसफॉर्मेशन हमने लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस में ये ज़रूरी है कि आपका इमेज इनपुट इमेज जो है वो डबल हो। मींस कि आपका इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज दोनों डबल हों। डबल होने से मुराद ये है कि उसमें वैल्यूज़ जो हैं ग्रे लेवल की वैल्यूज़ जो हैं वो 0.0 से 1.0 के दरमियान होनी चाहिए। ओके तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा तो इस वजह से हमने अपने कोड में पहले क्या किया कि जो हमारा ग्रे लेवल इमेज था उसमें बेसिकली हमारे ग्रे लेवल 0 से 255 थे, हमने जो है वो जो कि इंटीजर फॉर्म में थे हमने उसे जो है वो डबल में कन्वर्ट किया। सो हमने इस इमेज को im2 डबल की कमांड लगाकर पहले डबल में कन्वर्ट किया। मींस कि हमने उसकी वैल्यूज़ जो है तमाम वैल्यू 0.0 से 1.0 के दरमियान आ गई। अच्छा अब इसके ऊपर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है। अच्छा पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने जैसे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वैसे तो आमतौर पे 1 होती है, लेकिन आप इसे 1.1 1.2 करके भी सेट कर देते हैं बाज़ औक़ात। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन जहाँ पे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। ओके सो हमने पावर लॉ के लिए जो पावर थी वो गैमा में दी थी, तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पे, कांस्टेंट के लिए c और पावर के लिए गैमा। तो हमने यूज़र से इनपुट करवा लिए। अच्छा देन
हमने अपने इनपुट इमेज की रेजोल्यूशन चेक की और फिर उतनी ही रेजोल्यूशन का आउटपुट इमेज जो जिसमें तमाम जो है वो ज़ीरोज़ होंगे, 0.0 से वैल्यूज़ तमाम इनिशलाइज होंगी, वो हमने एक ले लिया। अच्छा, और उसके बाद हमने नेस्टेड लूप अगेन उसी स्टाइल में लगाया m क्रॉस n के इमेज के लिए, और हर पिक्सल के अगेंस्ट हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा है कि जो c है उसको मल्टीप्लाई किया इनपुट इमेज की पिक्सल और उसकी पावर ली गैमा। ओके, सो आउटपुट इमेज की पिक्सल जो है कैसे कैलकुलेट हो रही है, आउटपुट इमेज पिक्सल इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय इनपुट इमेज पिक्सल पावर, ये पावर का साइन है। ओके, ये पावर का ऑपरेटर है, और इसके बाद आपने लिख दिया गैमा। ओके, तो ये इनपुट इमेज की जो भी वैल्यू होगी दैट शुड बी बिटवीन 0.0 to 1.0, तो उसका जो है वो गैमा कैलकुलेट हुआ, और जो भी आंसर आया उसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर for the output image, and again this answer will be within 0.0 to 1.0. It must be within 0.0 to 1.0. ओके, तो ये इससे 1 से एक्सीड नहीं करेगा, ना ही 0 से नीचे जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 0 से तो नीचे नहीं जाएगा, और 1 से भी एक्सीड नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से ये आउटपुट इमेज भी आपका डबल का इमेज होगा। और आखिर में हम इफ़ेक्ट देखने के लिए दोनों इमेजेस को सामने रखकर, यानी एक अपनी विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड करके, पहले हिस्से में इनपुट इमेज, दूसरे हिस्से में आउटपुट इमेज हम शो कर रहे हैं, अगेन उसी स्टाइल में जैसे हम पिछली ट्रांसफॉर्मेशंस में हम आखिर में किया करते थे। ओके, सो ये तो जी कोड हुआ पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का, और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे इस कोड को, तो इस तरह से हमें एक विंडो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी एनहांसमेंट हुई हमारे इनपुट इमेज में। ये इनफैक्ट इमेज था बहुत ब्राइट जो है वो इमेज था, इसमें रोशनी बहुत तेज़ थी, तो इसको हमें डार्कनेस इसमें इंक्रीज़ करनी थी। सो दैट्स वाई हमने जो गैमा की वैल्यू है वो 5 सेट की, तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज कितना एनहांस हुआ। ओके, सो द वैल्यू ऑफ c विच इज़ यूजली 1, तो हमने भी उसको 1 ही सेट किया, ताहम आप इसे 1.1 1.2 करके भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो लेकिन एनीवे मैंने यहाँ पे इसे 1 सेट किया, जब इसको रन किया और गैमा की वैल्यू 5 दी, जिसके अगेंस्ट हमें ये वाली आउटपुट मिली। ओके, सो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन से हमने देखा कि कैसे जो है इमेज को एनहांस किया जा सकता है। अब यही एग्जांपल मैं डिफरेंट गैमा के मैंने इसी कोड को, जो भी मैंने ये कोड लिखा है, इस कोड को मैंने डिफरेंट यही इनपुट देते हुए, यानी ये इनपुट देते हुए मैंने डिफरेंट पावर्स के अगेंस्ट, यानी गैमा की वैल्यूज़ के अगेंस्ट इसे चेक किया, तो मुझे इस किस्म के रिजल्ट्स मिले। ओके, आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इमेज है जो कि एरियल व्यू है एक रनवे का, और लेट्स से जब हम इस रनवे का एरियल व्यू लेते हैं तो सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, और उसकी वजह से जो है हमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिली इनपुट इमेज के अंदर। तो हम इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जज कर सकते कि रनवे एग्जैक्टली किस जगह पे है, या एग्जैक्टली रनवे की बाउंड्री कहाँ पे आती है, और जो सड़कें हैं, जो घर हैं, जो मतलब बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो वो इस एरियल व्यू के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से जज करने के लिए हमने इस इमेज को एनहांस किया। फॉर एनहांसमेंट पर्पस वी हैव अप्लाइड पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इफ़ वी हैव सेटेड द गैमा ऑफ 3.0 मीन्स द गैमा ऑफ 3, तो हमें कुछ इस किस्म का इंफॉर्मेशन मिली। 4 करने से आपने देखा कि इसमें मज़ीद डार्कनेस आई, और 5 करने से मज़ीद आई। अगर आप इसको इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो इतनी डार्कनेस आएगी कि फिर इमेज जो है वो इवन पहले से बुरा हो जाएगा। ओके, सो हमें जहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें वो हमें जो है वो वहाँ पे गैमा को सेट कर लेते हैं। तो इट मीन्स के इट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। Okay, but one thing is very clear that if your input image has much brightness, then it needs some gamma which should be greater than 1. Okay, अगर इसके opposite case हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स यहाँ शेयर किए कि अगर मैंने इनपुट इमेज कुछ डार्क लिया और मैं इसको जो है ना डार्कनेस कम करना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स फिर मुझे 1 से ज़्यादा पावर नहीं लेनी होगी बल्कि 1 से कम लेनी होगी। ओके, तो लेट्स से मैंने इसका अंडर रूट यानी कि 1/2 मीन 0.5 मैंने गैमा लिया, यानी पावर जो है 0.5 ली,
तो उस केस में कुछ इस किस्म का रिज़ल्ट आया। अगर वो 0.35 की तो मज़ीद ब्राइट हुआ, और फिर 0.2 करने से और ब्राइट हो गया। ओके, तो ये ऑलमोस्ट वही है जैसे हमारा इनपुट इमेज था। ओके, आप देख रहे हैं कि इसको हमने 5 पावर ली, और यहाँ पर वही 1/5 जो है हमने यूज़ किया। तो आप यूँ कह लें कि इस इमेज से वापस इस इमेज में कन्वर्जन हो गई। ओके, तो अब आई होप कि आपको पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और जो हमने ये कर्व की बात की थी कि कैसे जो है इनपुट इमेज में पावर 1 से इंक्रीज़ करने से कैसे जो है उसमें डार्कनेस पैदा होती है, और 1 से कम करने से कैसे ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती है, ये बात भी इस एग्जांपल के ज़रिए से समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ली है मैंने, जो कि एक इनपुट इमेज है, बहुत डार्क इमेज है। इनफैक्ट ये MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है एक फ्रैक्चर्ड ह्यूमन स्पाइन का, और वी वांट टू गेट मोर डिटेल्स इन दिस फ्रैक्चर्ड स्पाइन इमेज। तो इसके लिए हमें इस डार्कनेस को कम करना पड़ेगा। देन पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज सूटेबल हेयर। हम उसमें पावर जो है यानी गैमा की वैल्यू जो है वो ऐसे यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स कि हमें ब्राइटनेस इंक्रीज़ करें, तो ऑफ कोर्स हमें 1 से कम करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन किया मैंने। 0.6 वैल्यू सेट की तो कुछ ये रिज़ल्ट मिला, 0.4 की तो कुछ ये रिज़ल्ट मिला, एंड 0.3 पर ये रिज़ल्ट मिला। तो आप अपने जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन डिफरेंट किस्म की करके इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन टू इन्हांस द इमेज। ओके, अच्छा, अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला कुछ यूँ है कि आपने जो इनपुट इमेज है उसमें 1 प्लस करना है, और फिर उसका लॉग आपने लेना है। लॉग मींस नेचुरल लॉग। ओके, आपने उसका नेचुरल लॉग लेना है और सी से उसे मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट द आउटपुट इमेज पिक्सल। हेयर सी इज़ यूजुअली सेट टू 1, मींस कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट यू कैन प्ले set the value of C as 1.1, you can set the value of C as 0.95, 0.90, 1.2, 1.5, यानी 1 के करीब करीब वैल्यूज़ जो है ना आप लगा के आप देख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है। दैट्स वाई जनरलाइज फार्मूला में C मौजूद है। ओके, सो S इज इक्वल टू C विच इज़ यूजली 1 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस R। ओके, अब ये 1 क्यों यूज़ किया हुआ है, इसकी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर आपका चूँकि इनपुट का इमेज जो है वो 0.0 से 1.0 हो सकता है, तो लेट्स से सबसे कम वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो अगर हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे तो ये लॉग ऑफ 0 का केस बन जाएगा। ओके, तो लॉग ऑफ 0 का आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और समथिंग पावर you can say that something's power 1, ठीक है, something's power 0 is equal to 1। ओके, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो E बेस होता है नेचुरल लॉग की, सो E की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स कि अगर नेचुरल लॉग 1 का लिया जाए तो उसका आंसर जो है वो 0 आता है। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम आंसर जो है वो 0 ज़रूर आए। तो इस वजह से इंश्योर करने के लिए कि हमें इनपुट जो है वो 1 ज़रूर हो, तो इसलिए 1 ऐड कर दिया गया R के अंदर। मींस अगर R की वैल्यू 0 भी हुई तो 0 में ये 1 ऐड होगा, तो ये 1 का लॉग लिया जाएगा नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है उसका आंसर 0 आएगा। means the minimum answer should be 0 from this natural log's value. Okay, so that's why we have used a log of 1 plus R. Okay, तो ये है जी जनरल फार्मूला, और आप मेरा ख्याल है इजीली अब इसका कोड लिख सकते हैं। यानी सेम वही कोड है, इमेज को ब्राउज़ किया, उसको रीड किया, अगर कलर्ड था तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसे डबल में कन्वर्ट किया, जस्ट टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज़ ऑफ ग्रे लेवल्स आर बिटवीन 0.0 to 1.0। ओके,
और फिर उसके बाद सी की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाई और फिर जो है वो हमने फार्मूला कुछ ऐसा अप्लाई किया कि सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस इनपुट इमेज पिक्सल्स वैल्यू। ओके, तो हमने कुछ इस कोड को जब अप्लाई किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिला हमारे इनपुट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अब ये जो काम हुआ ये क्या हुआ कि आपका लॉग का फंक्शन करता क्या है या कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो फंक्शन है लॉग का, इट्स पर्टिकुलरली यूज़फुल वेयर इनपुट ग्रे लेवल्स मे हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इमेज बहुत ब्राइट है और आप उसकी वैल्यूज़ को कम करना चाहते हैं। ओके, यानी डार्कनेस की तरफ नहीं लेके जाना चाहते, बल्कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप उसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं कि वो इंतहाई जो उसमें इल्यूमिनेशन है वो कम हो जाए, यानी जो इंतहाई वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं, लार्ज वैल्यूज़ हैं, उनको कम किया जा सके। ओके, तो यही तो लॉग में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। ओके, अच्छा, अब अगर हम जाते हैं 7 पॉइंट समथिंग का नेचुरल लॉग लें तो उसका आंसर 2 आता है। तो वैल्यू कितनी बड़ी थी, 7 पॉइंट समथिंग, बिकॉज ई क्या होता है 2.71 समथिंग, तो ई की पावर 2 इज इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना। तो जब हम इस 7 पॉइंट समथिंग का नेचुरल लॉग लेंगे तो हमें आंसर में 2 मिलेगा। इसका मतलब 7 पॉइंट समथिंग एक बड़ी वैल्यू थी, तो उसको जो है उस पर नेचुरल लॉग लगाने से हमें छोटी वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन का पर्पस होता है कि जो लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे इस इनपुट इमेज में जो लार्ज इल्यूमिनेशन लेवल्स थे उसको कम कर दिया गया, उसको छोटा कर दिया गया। ठीक है, तो एक ख़ास तनासुब से छोटा कर दिया गया। पावर लॉ तो हमने अप्लाई किया था ना, जब हमने जितनी जितनी पावर 0 से 1 से कम करते जा रहे थे तो डार्कनेस इम्प्रूव हो रही थी। अच्छा, जितनी जितनी पावर 1 से बढ़ाते जा रहे थे तो ब्राइटनेस इम्प्रूव हो रही थी। लेकिन लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ब्राइटनेस इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि ब्राइटनेस कम होती है। लेकिन वो कम जो है वो डार्कनेस की तरफ नहीं जाती, बल्कि आप यूँ कह लें कि वो जो ब्राइटनेस कम होती है वो ख़ास तनासुब से कम होती है। ओके, तो हम जस्ट लार्ज वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। और जब आपको ऐसी आपकी एप्लीकेशन हो, जब आपको इस किस्म की रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो उस वक्त आप जो है वो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें इस तरह से इस इनपुट इमेज के अगेंस्ट ऐसी आउटपुट मिलेगी। ओके, सो ये तो थी जी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस। और अब फाइनली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट देना चाह रहा हूँ, और आई होप कि इस प्रोजेक्ट के बनाने से आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और आपको जो है थोड़ी एक्सपर्टीज़ पैदा होंगी आप में कि आप इमेज एनहांसमेंट के प्रोजेक्ट्स को ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक GUI एप्लीकेशन बनानी है, यानी आपकी जो स्क्रीन अपीयर हो प्रोजेक्ट की वो कुछ ऐसी अपीयर होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए डिप प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय, आपका नाम होना चाहिए, और फिर ब्रैकेट में आपने अपनी क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जैक्टली पहचान हो सके कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टूडेंट का है एंड उस स्टूडेंट की क्लास कौन सी है। ओके, सो इसमें आपने सेम उसी स्टाइल में ये कुछ बटन्स का ग्रुप बनाया, जिसमें कुछ आपने रेडियो बटन्स लगाने हैं। अच्छा, कुछ पुश बटन 2 लगाने हैं, एक ये एक्सेस लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यूज़र जो है वो इस बटन को प्रेस करे, यानी ब्राउज इमेज के बटन को प्रेस करे, तो आपका इमेज एक ब्राउज होना चाहिए और साथ ही वो इमेज जो है वो इनपुट इमेज जो है इसमें शो होना चाहिए विंडो में। ओके, इसके बाद आपने यूज़र को ये 6 ऑप्शंस दी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की ऑप्शन जो है वो इसका रेडियो बटन ऑन होगा, बाकी सब जो है ऑफ होंगे। ज़ाहिर है कि एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट होगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का बटन ही ऑन हम रखते हैं और इन्हांस इमेज पे हम क्लिक करते हैं, तो साथ ही हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का कोड चलना चाहिए। ओके,
उसके लिए क्या करना है, इन बटन्स को गायब करना है, इसी स्क्रीन पे लाना है या इस स्क्रीन को बंद करना है, और उसके बाद जो है आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है ना वो लेकर जाना है। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैंने ये सारे कोड करवाए हुए हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के, थ्रेशोल्डिंग, नेगेटिव, पावर लॉ, लॉगरिथमिक, ये तमाम कोड्स जो हैं आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, अवेलेबल हैं। आपने जस्ट इनकी वीविंग करनी है, मींस इनको इकट्ठा करना है, और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की वीविंग करने के बाद आपने इसे जो है ना वो एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो आप ये प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको डेडलाइंस बता दी हैं, और इन डेडलाइंस में आपने ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।